Start question number 6 in which it is given triangle PQR as well as triangle ABC, जिसमें ये जो AB है AB को PQ के पैरेलल दिया और ये जो AC है AC को PR के पैरेलल दिया है और प्रूफ करने के लिए दिया है कि प्रूव दैट BC इज पैरेलल टू QR। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट राइटिंग डाउन द गिवन व्हाट इज गिवन टू अस। गिवन में हमें दिया है दैट AB is parallel to PQ and as well as AC is parallel to PR. With the help of this information, we need to prove that what we need to prove that BC is parallel to QR. So let's go ahead with this. I already told you given अपने आप में बहुत बड़ा help है हमारे लिए. So we will use that. The very first in triangle POQ, आप देख सकते हैं ये triangle POQ है. In triangle POQ में अगर AB जो है PQ के पैरेलल है, so what does that means? इनके corresponding side ratio equal हो जाएंगे by Thales theorem. So that only we are going to write down that AB is parallel to PQ. So next statement is we will apply Thales theorem on that triangle. By Thales theorem, we are having their corresponding side ratio equal. That means OA upon AP will become same as OB upon BQ. Now let this be equation number 1. Second part जो हमें दिया हमें वो भी लिखना है that AC is parallel to PR. तो अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ AC और PR आपस में पैरेलल है इन ट्राइंगल POR. दैट मीन्स इनके भी करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इक्वल हो जाएंगे बाय थेल्स थ्योरम. सो वी विल अगेन अप्लाई बाय थेल्स थ्योरम. इनके भी करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इक्वल होंगे जो है सेम OA अपॉन AP एक तरफ से, बट दूसरे तरफ से होगा वो OC अपॉन CR. So this will be equation number 2. One or two equations हमें पता चल रहा है when two things are equal to the same thing then they both are also equal. OB by BQ और OC by CR दोनों ही OA upon AP के equal हैं. So from 1 and 2 equation हमें ये मिल जा रहा है कि OB upon BQ is equals to OC upon CR. तो अब फिगर में वापस चलते हैं और देखते हैं what does this means. You can see here when OB upon BQ is equal to OC upon CR in triangle OQR. तो corresponding side ratio तो तभी equal हो सकते हैं when given two line segments are parallel. That means BC is parallel to QR by converse of Thales theorem. तो वही हम लिखने वाले हैं next. Therefore BC is parallel to QR by converse of Thales theorem, which says that if corresponding side ratios are equal, then the given two lines are parallel. So by converse of Thales theorem. So this is how we have proved question number 6. Prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. ये कहीं ना कहीं आपको क्लास 9 मिड पॉइंट थ्योरम की याद दिलाता है. क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर डी लाइन BC के पैरेलल है और अगर D मिड पॉइंट है तो हमको प्रूफ करना है कि जो E है वो भी मिड पॉइंट है. तो सबसे पहले व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन टू अस दैट इज इंपॉर्टेंट. तो पहले लिख लेते हैं गिवन में हमें दिया है दैट सबसे पहले जो D लाइन है दैट इज पैरेलल टू BC एंड नेक्स्ट D इज द मिड पॉइंट. अगर D मिड पॉइंट है तो मतलब AD का जो लेंथ है वो इक्वल हो जाएगा BD के लेंथ. सो वी विल राइट डाउन दैट स्टेटमेंट that our AD length is given equal to BD length. तो हमें प्रूफ करना है कि E भी मिड पॉइंट है with the help of Thales theorem. So we will write down E is the midpoint. E is the midpoint प्रूफ करने के लिए काफ़ी होगा अगर हम प्रूफ कर ले कि the part of AE is equal to the part of EC. Okay. So now let's start towards our proof. अब इसको थेल्स थ्योरम यूज करके कैसे प्रूफ करते हैं जस्ट सी. नाउ हियर कम्स आवर प्रूफ पार्ट. सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे दैट DE इज पैरेलल टू BC इन ट्राइंगल ABC. तो इसमें हम थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं. तो वी विल अप्लाई थेल्स थ्योरम इन दिस ट्राइंगल. बाय थेल्स थ्योरम व्हाट इज गोइंग टू हैपन, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इक्वल हो जाते हैं आपको पता है. तो AD अपॉन BD विल बिकम इक्वल्स टू AE अपॉन EC और इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. अब ये आपको पता है कि AD is equals to BD. Why? Because D is the midpoint and it is already given.
सो व्हाट इट विल हैपन, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, बन जाएगा BD अपॉन BD, AD की जगह BD सब्स्टिट्यूट कर दिए बिकॉज दे बोथ आर सेम, दैट विल बिकम AE अपॉन EC. So what will happen? BD will cancel and AE by EC will become to the ratio of 1:1. So that means what? हो गया हमारा प्रूफ पूरा. इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा कि AE part is equal to EC part. AE equal to EC, which itself means that E is the midpoint of AC. So in this way we have used the Thales theorem and we have solved this question. Prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. इसका मतलब ये हुआ, एक ट्राइंगल ABC आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसमें दो मिड पॉइंट है D और E, दोनों को मिड पॉइंट बता रहा है. दैट मीन्स AD और BD का सेगमेंट इक्वल है और AE और EC का पार्ट भी आपस में इक्वल है. तो हमें प्रूफ करना है ये जो DE लाइन है ये BC लाइन के पैरेलल है. So let's go ahead with the very first thing, what is given to us. सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें given में क्या दिया है. So what is given? Given में ये दिया है कि D is the midpoint, that means AD equals to BD हमें दिया हुआ है. Next E भी midpoint है तो मतलब AE equals to EC हमें दिया हुआ है. So what I need to prove? I need to prove that कि जो वो D लाइन है जो midpoint को जोड़ रहा है वो parallel है BC के. So let's go ahead with the proof part. So first we will write down जो हमें given है, मैंने पहले आपसे कहा है given हमें काफ़ी चीज़ों में हेल्प कर लेता है. that AD is equals to BD. BD के साथ कुछ नहीं है तो बोल सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू BD, अगर उधर जाएगा तो बनेगा डिवाइडेड बाई BD. इट मीन्स AD बाई BD इज इक्वल्स टू 1. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली हमारे पास है AE इक्वल्स टू EC, यहाँ भी कुछ भी नहीं है, वी कैन से इट इज मल्टीप्लाइड बाई 1, द थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज. तो इंटू AC इधर आ जाएगा, बन जाएगा डिवाइडेड बाई AC, and this whole part is also equals to 1. From equation 1 and 2 we can say that the two things which are equal to the same thing are equal to one another. तो 1 और 2 से ये चीज़ तो प्रूफ हो जाता है कि AD रेशियो बाई BD इज इक्वल्स टू AE रेशियो बाई EC. तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो तो तभी इक्वल हो सकते हैं when given two things, when given two lines are parallel. That means DE is parallel to BC. Why? By converse of Thales theorem, which says that if the ratio of two corresponding sides are equal, then the given two lines are parallel. So we'll write down by converse of Thales theorem. Number 9 जिसमें बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. आप देख सकते हैं ये AB साइड है और ये DC साइड है, ये दोनों आपस में पैरेलल है. तो हमें प्रूफ क्या करना है, अगर ये डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसमें हमें प्रूफ करना है कि AO बाई OB इज इक्वल टू OC बाई OD. हाउ इट इज गोइंग टू हैपन? सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं. हमको गिवन क्या दिया है, तो गिवन हमें ये दिया है कि AB लाइन इज पैरेलल टू DC. गिवन हमें ये दिया है कि AB इज पैरेलल टू DC. तो हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें टू प्रूफ ये करना है कि AO पोर्शन अपॉन BO पोर्शन इज इक्वल्स टू CO पोर्शन बाय DO पोर्शन. दिस वी नीड टू प्रूव इट. इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे. वी विल ड्रॉ OE लाइन विच इज पैरेलल टू AB. सो वी विल राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन. हमने अभी क्या किया है, हमने कंस्ट्रक्शन में ये किया है कि draw OE which is parallel to AB. अब आपको यहाँ एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, ट्राइंगल ADB. So let us move towards the proof section. By construction अभी हो गया है OE is parallel to AB. तो OE अगर AB के पैरेलल है, we will write down the reason by construction. तो जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बाय थेल्स थ्योरम इक्वल हो जाता है. सो दैट ओनली वी विल राइट डाउन बाय थेल्स थ्योरम. इनके करस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज इक्वल हो गए. दैट मीन्स DE अपॉन EA इज इक्वल्स टू OD अपॉन OB. नाउ लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. अब जब OE AB के पैरेलल है और AB CD के पैरेलल है तो OE CD के भी पैरेलल होगा, बिकॉज इफ टू लाइंस पैरेलल टू द सेम गिवन लाइन देन दे बोथ आर आल्सो पैरेलल. If OE is parallel to AB, then definitely it will also be parallel to CD as AB is parallel to CD. So in that case, if OE is parallel to CD,
तो अगेन बाय थेल्स थ्योरम इन ट्राइंगल एडीसी उसमें अप्लाई करेंगे बाय थेल्स थ्योरम, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इक्वल हो जाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो हो जाएगा DE अपॉन EA will be equals to OC upon OA. Now let this be equation number 2. अब from 1 and 2 आप देख रहे हो two things again which are equal to the same thing are equal to one another. So we will write down from equation 1 and 2 we are having दोनों OD by OB और OC by OA equal है DE upon EA, that is common. So we will write down कि OD by OB is now equal to OC by OA. लेट अस टेक द रेसिप्रोकल। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा OB बाई OD इज इक्वल्स टू OA बाई OC। एक लास्ट स्टेप हमें जो करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, OB की जगह OC चला जाएगा, OC की जगह OB चला जाएगा, तो दोनों इंटरचेंज कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, and at last we will get the term which is required, that OA upon OB is equals to OC upon OD. Now let's start with question number 10. Question number 10 में just उल्टा पूछ रहा है जो question number 9 में था, कि suppose if diagonals of a quadrilateral आपस में intersect कर रहे हैं at point O in such a way कि AO by BO ratio is equal to CO by DO, तो हमें प्रूफ करना है ABCD is a trapezium। कोई भी quadrilateral का अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है तो वो ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए काफ़ी होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास गिवन में ये दिया है कि इस क्वाड्रिलेटरल में AO अपॉन OB पार्ट इज गिवन इक्वल्स टू CO अपॉन DO पार्ट। नाउ हमें प्रूफ करना है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, जिसके लिए काफी होगा ये प्रूफ करना कि इसका कोई भी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है। सो वी विल राइट डाउन ABCD इज अ ट्रेपेजियम, दिस वी आर गोइंग टू प्रूव इट। नाउ लेट अस स्टार्ट डूइंग द पार्ट विद कंस्ट्रक्शन। यहाँ भी हम वही कंस्ट्रक्शन करेंगे जो हमने इसके पहले वाले में किया था, that is we will draw OE line which is parallel to AB. So this is OE line which is parallel to AB. So these two are parallel according to my construction which I will write it down. Draw OE which is parallel to AB. Now let us start with the proving part. हमको ऑलरेडी दिया है कि AO part upon OB part is equals to OC part upon DO part, OC part upon OD part. So again we can interchange the place, OB को OC की जगह और OC को OB की जगह, तो हो जाएगा AO by OC equals to OB by OD। हमने इंटरचेंज कर दिया उनके प्लेस को। Let this be equation number 1. Now by construction we are having OE is parallel to AB in triangle ABD. This we will write down how this happened. This is by construction. So what we can go ahead, we can go ahead by Thales theorem in triangle ABD will apply, इनके corresponding side ratio equal हो जाएंगे। So we will write down by Thales theorem, तो DE by EA बन जाएगा OD by OB के। Now we have to do the reciprocal of this, this will become EA upon DE, that is equals to OB upon OD। तो इक्वेशन 1 और 2 में आप देखेगा दोनों में एक चीज कॉमन है, OB by OD, तो बचे दो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो आपस में इक्वल हो गए। सो वी राइट डाउन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी आर हैविंग द रेशियो AO by OC is equals to EA upon DE। नाउ अब आप इस ट्राइंगल में देखिए जो मैं बता रहा हूँ, ट्राइंगल ADC में AO अपॉन OC इक्वल है EA अपॉन ED। डैट मीन्स ट्राइंगल के अगर करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इक्वल है, मतलब वो जो लाइन है वो थर्ड लाइन के पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, तो देयरफॉर वी विल राइट डाउन OE is parallel to DC। and what is the reason behind that? By converse of Thales theorem। so गिवन में हमने एक चीज ऑलरेडी बोल चुका है कि OE ऑलरेडी पैरेलल है AB के, एंड OE इज नाउ आल्सो पैरेलल टू DC। नाउ ये तो आपको पता है व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे बोथ आर आल्सो पैरेलल, तो इससे प्रूफ हो जाता है कि AB और DC भी आपस में पैरेलल है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल का अगर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल है तो फिगर ट्रेपेजियम कहलाता है। सो वी विल राइट डाउन हेंस ABCD इज अ trapezium।